kind of politics will the young netas of India practice? Will it be a brand of politics that rises above identity, walks away from the ghastly shadow of caste, focuses on aspiration, talks the language of inclusiveness, or will our young netas too, like their forebearers, practice a regressive brand of identity politics, a brand of politics that sharpens societal divides, reminds people in every speech of their caste, and looks to build vote banks based on crude caste calculations? Is the new generation of our netas guilty of playing the same vicious political games that generations have played before them? Ladies and gentlemen, join me in welcoming to the India Today Conclave 2018 our 5 fabulous young speakers. Let me begin by introducing, first and foremost, the young neta from Gujarat who models himself as a modern Sardar Patel, whose rise to prominence was propelled by playing caste politics. Please welcome the feisty Hardik Patel. A rock star for some, a villain for many others. The face of student protest at the Jawaharlal Nehru University. Raise a round of applause for the former president of the Students' Union, Kanhaiya Kumar. A staunch feminist, a fiery speaker, one of the best known faces among the younger generations of India's leftists, an activist who's risen from the streets of downtown Srinagar to national primetime reckoning, Shehla Rashid Shora. Squaring off against this trio, I want to introduce a bright up-and-coming writer and columnist of India's ever-expanding right, former alumni of Miranda House and a fellow of India Foundation, Shubha Rashtra. Last but not least, the national media in charge of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, Rohit Chahal. Can we have a warm round of applause for all our guests, please? I requested them to leave their boxing gloves on the sides as they walked up. So, Hardik Patel, are you not guilty of playing crude caste politics, of reminding people in every single speech that you did in Gujarat that tum patidar ho, tumhare saath anyay hua, instead of speaking a language of inclusiveness? As a 21st century neta, instead of taking India towards a job-centric, entire situation where the whole focus is on bettering people's lives. आप हर स्पीच में, हर बार जब मौका याद आता है, गुजरात में जो आपने कैंपेन किया, पाटीदार पाटीदार पाटीदार, एंटी पाटीदार प्रो पाटीदार, आपकी पॉलिटिक्स इतनी कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी बेस्ड क्यों है? देखो, हमने तो किसी का विरोध किया नहीं है, मतलब हम किसी के विरोधी है नहीं। और रोजगार मांगना, अगर अच्छी शिक्षा मांगना, अगर इसको कोई कास्ट पॉलिटिक्स कहता है तो वो मेरी समझ में नहीं आता। गुजरात के अंदर या पूरे देश की बात की जाए तो खास तौर पर गुजरात के अंदर जिस तरह से शिक्षा में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, रोजगार बिल्कुल है नहीं, किसान पूरा दिन मेहनत करता है, किसान पूरा दिन खेत में रहता है, लेकिन उसको सही फसल के दाम नहीं मिलते। गुजरात में हमने जो भी बात कही है सिर्फ और सिर्फ युवाओं को रोजगार की बात कही है, युवाओं को सही शिक्षा की बात कही है और किसानों को अपना अधिकार मिले ऐसी बात कही है। मैं सही मानता हूं कि एक समुदाय के लिए बात करने कहीं ना कहीं किसी को पसंद नहीं आ सकता, या फिर किसी को यह भी लग सकता है कि ये पाटीदार अलग है, ये किसी का विरोध कर रहे हैं। हमने एसटी, एससी, ओबीसी समाज का आज तक गुजरात के अंदर विरोध नहीं किया, और गुजरात के बाहर हम जहां जाते हैं तो वहाँ पर हमारे ही कास्ट के लोग ओबीसी कास्ट में है, कुछ लोग एसटी में जाकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखा जाए तो। राहुल जी, एक बड़ी बात यह है कि गुजरात के अंदर अगर कुछ अच्छा करने का मौका मिला था हम लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो भी समाज के लोग हो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। आज हम कहाँ पर है?
आज लोग रोजगार मांग रहे हैं, कोई आत्महत्या करता है या फिर कोई स्कूल बंद हो गई है। गुजरात गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि इस स्कूल में इतनी ही फीस लेनी चाहिए, फिर भी सारी प्राइवेट सेक्टर के स्कूलें मन मौज से 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। आपको लगता होगा कि आरक्षण से क्या फायदा, आरक्षण से क्या ये सारी नीति खत्म हो जाएगी? हम ये नहीं कहते कि आरक्षण से हमारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है, लेकिन हमारी जो बात है वो गुजरात गवर्नमेंट या देश की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उसके द्वारा बनी हुई नीतियों का हम विरोध करते हैं। हमें आज तक किसी ने ये नहीं पूछा हार्दिक तुम लोग आरक्षण मांग क्यों रहे हो, हमने किसी ने ये नहीं पूछा कि आरक्षण मांगने की वजह कौन सी आ गई है। सबने यही पूछा कि यार पटेल हो आरक्षण क्यों मांगते हो, आप तो समृद्ध जाति से आते हो, हीरा डायमंड व्यापारी हो आप लोग, बड़ी बड़ी जमीनें हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर जब बाहर निकलता है तो उसके लिए रोजगार है। अच्छी बात है, लोग नहीं पूछते, लेकिन हम हमारा काम करते हैं और बड़े गर्व से करते हैं, इसमें कोई बात छुपाते नहीं है। अगर हमारी बात को कोई कास्ट पॉलिटिक्स लेता है तो हमें वो कास्ट पॉलिटिक्स अच्छी तरह से पसंद है। Shubharashtra, if there are problems in society, those who voice those problems and champion those causes. देखो 2 मिनट, मैं पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदी शुद्ध बोलोगे तो मेरी समझ में आएगी, अंग्रेजी तो ऊपर से जाती है, तो हिंदी में थोड़ा मुझे भी मजा आएगा, मैं भी समझ पाऊंगा और जवाब आपको भी अच्छी तरह से दे पाऊंगा। शुभराष्ट्र, हार्दिक पटेल ने कहा कि अगर जात की कोई बात करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, जात पॉलिटिक्स कोई डिफेंसिव होकर करने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार ने 22 साल में जो काम किया उसके बावजूद भी कई समुदायों को लगता है कि उनकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो उसकी बात उठाने को वो गर्व से उठाते हैं, कहते हैं हम डिफेंसिव होकर नहीं उठाने वाले हैं, आपकी सरकार थी, आपकी जिम्मेदारियां थी, आप नहीं कर पाए, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। आपको नहीं पसंद में आती इसलिए आप कहते हैं कि वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का। देखिए, ये सरकार जो है वो केवल आपकी सरकार नहीं है, ये हमारी सरकार है। हार्दिक पटेल जी की भी उतनी ही सरकार है जितनी शुभ रास्ता की है, रोहित चहल की है और शैला राशिद की और कन्हैया जी की है। तो पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि क्या हार्दिक पटेल जी बहुत ही निरंतरता से ये इस बात पे कायम रहेंगे कि वो जनरल मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। आरक्षण का विरोध प्रतिरोध, मुझे उस बहस में ही नहीं फंसना। मैं आज हार्दिक जी से एक सवाल लेकर आई हूँ भारत के युवा होने के नाते, और आप एक युवा लीडर हैं। क्या आप पटेल आंदोलन को धता बताते हुए क्या आप केवल और केवल बेरोजगारी की राजनीति करेंगे, और करेंगे तो आज जनता के सामने कहिए कि दोबारा हार्दिक पटेल नहीं, हार्दिक हिंदुस्तानी के नाम से आप जाने जाएंगे? मैं इसका बड़े अच्छे से जवाब दूंगा, क्योंकि अभी तक समाज सेवा कर रहा था, लोगों को लगता था कि राजनीति कर रहे हैं, अब तो खुले बोलता हूं कि राजनीति ही कर रहा हूं, उसमें छुपाता ही नहीं हूं। और बड़ी बात यह है कि आपने जो लाइन शुरू की, राजनीति कर रहे हो तो सबको पता है, शुरू किया आपने सरदार के बाद, बताइए। नहीं, आपने सरदार के नाम से शुरू किया, मैंने अभी जो भी बोला उसमें सरदार पटेल का नाम नहीं लिया। अगर सरदार पटेल के जीवन से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है तो उनका नाम लेना, ऐसे एक नाम लेना मैं गलत नहीं समझता। आप केवल बेरोजगारी पे एक सेकंड, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आप दोनों ने कहा कि हिंदी में इस वाद विवाद को आगे बढ़ाया जाए, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे ऐतराज इस बात से है कि सब साथ में नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर स्कोर करने नहीं आए हैं, आपके लिए ताली बजे इसके लिए नहीं आए। ये इंडिया टुडे कॉन्क्लेव है, मंच की एक गरिमा है, उस गरिमा का आप ख्याल रखें। ख्याल रखते हुए जब आपसे पूछा जाए तभी आप माइक उठाएं, आप जवाब दें, वरना ये बहस आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस बात को आप मानेंगी, मैंने आपसे अभी कोई सवाल पूछा नहीं है, जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप बोलेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, उनको आप बोलने देंगे। अभी आप अपना हाथ नीचे कर सकती हैं, क्योंकि मेरा अगला सवाल आपसे नहीं है, आपसे नहीं है। जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप बोलेंगी, तब तक इतना व्याकुल ना होइए। एक राइडर जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप बोलेंगी, उससे पहले आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि मॉडरेटर में है और उनको अपना काम आप करने दीजिए। आप अपनी माइक फिलहाल छोड़ दीजिए। अवैध रूप से ये किया जा रहा है। कन्हैया, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि अगर आप युवा पीढ़ी के नेता हो तो युवा पीढ़ी के नेता होने के नाते, जैसे शुभराष्ट्र ने कहा, बेरोजगारी की ही बात करो। आप ये क्यों कहते हो कि हमें पटेलों को रोजगार देना है? आपको अगर बात करनी है, जो भी आपकी जात हो, जो भी आपका समुदाय हो, आप पूरी कम्युनिटी की बात करो, सब यंगस्टर्स की बात करो। ये क्यों कि हमें इसी को देना है, मैं इसी, तो ये तो बहुत पॉलिटिकल है ना फिर। सर, आपने आज जब इस सेशन को शुरू करते हुए आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और आइडेंटिटी जो ही आपने कहा तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब मैं हिंदुस्तान से बाहर होता हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं भारतीय हूँ, और जब मैं हिंदुस्तान के अंदर हूँ, मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, तो मैं मुंबई में कहूँगा कि मैं बिहारी हूँ, और जब मैं बिहार में रहूँगा तो मैं कहूँगा कि मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। आइडेंटिटी का मसला क्या है?
आइडेंटिटी यदि आप मेरी मुझसे पूछेंगे तो सबसे पहले मैं होमो सेपियंस हूँ, मैं मनुष्य हूँ। उसके बाद जो है मैं एशियाई महादेश का रहने वाला हूँ। उसके बाद मैं भारतीय हूँ। उसके बाद मैं बिहारी हूँ। उसके बाद बेगूसराय का रहने वाला हूँ। दिक्कत कहाँ आती है? आइडेंटिटी को इतना क्रिमिनलाइज कब किया जाता है, इसको आप समझिए। मिश्रा पांडे हम बहुत गर्व से लगाते हैं, सिंह शर्मा ठाकुर बहुत गर्व से लगाते हैं, तो क्या पटेल, महतो, पासवान, यादव, राहुल कंवल, कोई अगर अपना नाम इस तरह से भी लगा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? यदि जब आप राष्ट्र की बात कहते हैं तब आपको राष्ट्रवादी कहा जाता है कि आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और जब हम उस राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उसी राष्ट्र में अलग अलग आइडेंटिटी के लोग हैं। हमारा संविधान और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना का जो पहला वर्ड है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है उसमें वी पीपल जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। जब उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, तो अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोग उसमें रहते हैं। तो पर्टिकुलर आइडेंटिटी की, मान लीजिए ये पटेल की बात कर रहे हैं, सहला हो सकती है कि महिलाओं की बात करें, रोहित जी हो सकता है कि जाटों की बात करें, अलग अलग कम्युनिटी के लोग बात करते हैं। तो उनके पीछे उनका आर्गूमेंट क्या होता है? उनका आर्गूमेंट ये होता है कि हम सबका साथ सबका विकास यदि करना चाहते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हम करना चाहते हैं, तो हम किसी कम्युनिटी को पीछे छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी लाइन मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो एक लाइन खींची हुई है, आगे बढ़ी हुई है, उसके बराबर में एक लाइन खींचने की बात कर रहे हैं, और ये दोनों लाइन जुड़ करके एक मुकम्मल भारत का निर्माण हो सके, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो किसी जाति विशेष के अंदर जो पिछड़ापन है उसको दूर करने की यदि कोशिश की जा रही है। कन्हैया भी ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मनुष्य का आधार है और आइडेंटिटी के ही इर्द गिर्द पॉलिटिक्स होती है। आपकी पार्टी को, बीजेपी को, संघ को पसंद में नहीं आता, इसलिए तकलीफ हो रही। कहते हैं कि यही पॉलिटिक्स है और इससे कोई परहेज नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। आज जो टॉपिक है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर है। मैं आपके सामने दो राजनीतिक मानचित्र, हमारे आज देश के जो मैप है वो आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। एक मैप ये है जो आज आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है। आज जो इनकी आइडेंटिटी है उसको पूरा देश नकार चुका है और उसका सबूत यहां पर है। आज पूरे नक्शे में सिर्फ केरला एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां पे आज ये लोग सिमट के रह चुके हैं। इन्होंने बात कही सबके साथ सबके विकास की। मुझे गर्व है कि आज मैं ऐसे संगठन से आता हूं जो सबका साथ सबका विकास की तो बात करते हैं कन्हैया जी, लेकिन हम लोग, हमारा जो विचार है वो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड की बात करता है कन्हैया जी। हम उस विचार से आते हैं जो अंत्योदय की बात करता है। अंत्योदय, जो व्यक्ति पंक्ति के सबसे अंतिम छोर पे खड़ा है, उसको कैसे पंक्ति के आगे जो सबसे आगे खड़ा है उसके साथ में लाके खड़ा किया जाए। आज जो हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, वो गरीबों की बात करता है, वो पिछड़ों की बात करता है, वो दलितों की बात करता है, वो महिलाओं की शोषित की बात करता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं और जब वो लाल किले से भाषण देते हैं उस तिरंगे ध्वज के नीचे खड़े होकर, तो वो बात करते हैं उस महिलाओं की, उन बच्चियों की जिनको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है शौचालय की। वो पढ़ लेते हैं कि मैं देश को। शहला, कहीं ना कहीं जो रोहित बात कह रहे हैं वो बात इस पे आती है कि संघ इस वक्त एक, और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस वक्त बात कर रहे हैं एक गांव, एक मंदिर, एक कुएं की, कि हमें समाज को जोड़ना है। ऐसे में आप पे आरोप लगता है कि आपकी नजरों में ही नुक्स है, कि बायस्ड प्रिज्म से आप एक तरीके से सरकार को, बीजेपी को, संघ को देखती हैं कि ये जो भी करते हैं उसमें आप नुक्स ही निकालती हैं। अगर संघ बात करता है एक मंदिर, एक कुएं की, एक गांव में, तो ये तो अच्छी बात है ना, आप तीनों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। हर बात पे आप मुखालफत करती हैं। देखिए, पहले तो मैं इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ कि हमारे देश में अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग समुदाय हैं, उनकी अलग अलग दिक्कतें हैं। जाति की शुरुआत हमने नहीं की, हमारी पीढ़ी ने जाति की शुरुआत नहीं की, हमने जात पात की शुरुआत नहीं की। लेकिन मैं इतनी उम्मीद ज़रूर रखती हूँ कि हमारी पीढ़ी होगी जो जाति को ख़त्म करेगी, जो जाति का निर्मूलन करेगी, वो हमारी पीढ़ी होगी। जिन लोगों को जाति की बात करके, बात पे किसी को जाति का एहसास दिला के आप जातिवाद खत्म नहीं करती हैं, उसको और गहराती हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जो है बहुत बुरा शब्द समझते हैं।
मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं रखना चाहती हूँ। जब से आज़ादी मिली है देश को, तब से महिलाओं की परसेंटेज पार्लियामेंट के अंदर कितनी है? 10 से 12% से ज़्यादा नहीं है। 90%, 80 से 90% मर्दों की परसेंटेज होती है, और उसको हम लोग कभी मेल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कहते। लेकिन अभी अगर महिलाएं बात करें, आप भूल जाइए रिजर्वेशन को, भूल जाइए आरक्षण को, भूल जाइए, लेकिन अगर महिलाएं रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है, तो हो जाएगा कि आप जी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हो। दूसरी बात, आप खुद महिला हैं। राहुल, मैंने जस्ट अभी अपना पॉइंट फिनिश नहीं किया है। जिन लोगों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बहुत दिक्कत है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब हम लोगों ने निर्भया कांड जब हुआ, तब जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने जो है थाने का गेट बंद किया, वहाँ से प्रोटेस्ट्स की शुरुआत हुई। क्या हम जानते थे निर्भया की जाति क्या है? क्या हम जानते थे उसका धर्म क्या है? क्या हम जानते थे जो रेपिस्ट है उनका धर्म क्या है? हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हम लोगों ने चक्का जाम किया यूपीए सरकार का और उस सरकार को गिराया। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं आज, जब एक 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर कठुआ के अंदर होता है, जम्मू कश्मीर के, भाजपा के कैबिनेट मंत्री, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, मैं किसी ट्रोल या किसी छोटे कार्यकर्ता की बात नहीं कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा के कैबिनेट मंत्री हिंदू एकता मंच के नाम से रैली निकालते हैं, कहते हैं कि रेपिस्ट को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो हिंदू था, और जो लड़की जिसका रेप हुआ, जो बच्ची जिसका रेप हुआ, वो मुसलमान थी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। जिन लोगों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से दिक्कत होती है, पहले इसका जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल निर्भया की जाति और निर्भया का धर्म देख के हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इस मंच का नियम ये है कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तब आप माइक उठाएंगे। मेरा अगला सवाल शुभराष्ट्र से है, वो आप ही की साइड पे, उनको भी बोलने दीजिए। जी शुभराष्ट्र, आप महिला हैं, आपको नहीं लगता कि जो शहला बात पूछ रही है विमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में, कि पार्लियामेंट में अगर मोदी सरकार ने अब तक 4 साल हो गए कुछ काम किया होता और महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल आया होता तो अच्छा होता? आपको नहीं लगता ये सवाल पूछा जाना चाहिए? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कि मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर समर्थक हूँ। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन भी करती हूँ, पर यहाँ कोई साइड है मुझे ऐसा नहीं पता था। आपने क्लियर कर दिया कि 3 और 2 का साइड है, पहली बात। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी की बात हो रही है, बोलने दीजिए राहुल जी, बहुत भरी हुई हूँ मैं अंदर से, बोलने दीजिए। 2-3 चीजों की बात की गई, बार बार टुकड़ों की राजनीति की बात की जा रही है, जहां कोई दलित है, कोई महिला है, कोई युवा है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव नारायणपुर से आती हूं जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और मैं दमखम के साथ कहना चाहती हूं कि भारतीय और हिंदू होने के अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और महिला की बात जब आती है तो शहला राशिद जी को अपने ही कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो का लेखा जोखा रखना चाहिए था। मैं इस आंकड़े में जाऊंगी ही नहीं कि पहली बार भारत में कोई महिला डिफेंस मंत्री ऐसी बनी है जो केवल खुद प्राइम मिनिस्टर थी इसीलिए अपने आप को नहीं बना लिया कि वो कंट्रोल रखना चाहती थी। वो एक एकात्मवाद की एक परिभाषा से परिभाषित राजनीति का हिस्सा बन करके आज वो एक डिफेंस मिनिस्टर बनी हुई हैं। तो मैं इन आंकड़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आंकड़े इनको स्टूडेंट्स हैं। मैं पिछले 5 साल से टैक्स पे कर रही हूँ। आई थिंक 2 लोग जो पैनल में बैठे हैं उनसे छोटी उम्र में, तो मैं तो हिसाब मांगने आई हूँ इनसे कि आप लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं की, डेटा क्यों नहीं है आप लोगों के पास कि इस सरकार ने और पिछली सरकारों ने क्या किया, क्यों आप लोग छद्म रूप से एक पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी का महिमा मंडन करते हैं। और नहीं राहुल जी बोलने दीजिए। अभी आपने क्यूमुलेटिव समय किनको दिया है और किस पक्ष को कम दिया, इसको ध्यान में रखकर कीजिए। पैनल ऐसे ही डिसबैलेंस्ड है। कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो के क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी में केवल 7% है महिलाओं का। 2 में से 2 वियतनामीज पॉलिट ब्यूरो में 16 में से केवल 2 महिलाएं हैं। लाओस कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो में एक भी आज तक महिला है नहीं। चाइना में केवल 1 महिला है 24 मर्दों के बीच, और सोवियत यूनियन में केवल 4 महिलाएं पॉलिट ब्यूरो में सर्व करती हैं। बोला, अब बाकी से भी सुन लीजिए। किस बात की राजनीति करती है शहला राशिद? आऊंगा क्योंकि ये सवाल शहला से अक्सर पूछा जाता है। एक सेकंड रोहित, मैंने आपको नियम समझाया, उस नियम को आप प्लीज फॉलो कीजिए। शहला से ये सवाल पूछा था कन्हैया आपसे भी कि भाई आपकी पढ़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही, आप तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसा डेरा जमा के बैठ गई हैं कि वहां से हट ही नहीं रही। जेएनयू की हवा में, उन जंगलों में, उन ढाबों में ऐसा क्या है कि शहला रशीद उसको छोड़ना ही नहीं चाहती? देखिए, मैं क्योंकि आप लोग टैक्स देने वाले हैं, हम लोग भी टैक्स देने वाले हैं। हर चीज़ पे जीएसटी, स्टेट जीएसटी सब कुछ लगता है, हम लोग भी टैक्स देते हैं। मैडम बोलने दीजिए प्लीज़। हमारे देश का स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि जब आप 3 या 4 साल के होते हैं तब आप नर्सरी में पहुंचते हैं।
जब आप 10वीं पास करते हैं तब आप 16 साल के होते हैं, जब आप 12वीं पास करते हैं आप 18 साल के हो जाते हैं, अगर आप बीए करते हैं तो 21 साल, बीटेक करते हैं तो 22 साल, एमबीबीएस या बीएलएलबी करते हैं तो 24 साल, उसके बाद अगर आप एमए करना चाहें तो 26 साल पकड़ लीजिए, एमफिल करना चाहें तो 28 साल पकड़ लीजिए, मैं आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, आप चिंता ना कीजिए। उसके बाद पीएचडी करना चाहें तो और 3-4 साल पकड़ लीजिए। लेकिन बात यह है, देखिए आज डिस्कोर्स किस तरह से बदला है। हम लोग जब छोटे होते थे तब हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि पढ़ने की, जानने की, शिक्षा हासिल करने की, ज्ञान हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। लेकिन आज इतनी जो ये एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म जो है इस सरकार का, दिस इज कंपैरेबल टू द बुक बर्निंग नाज़ीज। इन लोगों को बस पढ़ाई खत्म करनी है, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। इनके मिनिस्टर कहते हैं कि डार्विन की थ्योरी गलत है, चलो भैया ये भी गलत है। इनके बाकी लोग कहकर आते हैं, इनके बाकी लोग कहते हैं कि हम इतिहास बदल देंगे, चलो ठीक है वो भी बदल दो। तो यार फिर एक काम करो, आप सारे पढ़ाई के सिस्टम को ही आप जो है खत्म कर दो। एक बार शैला जी, शैला जी आपने बोला बातें करती है महिलाओं की और खास करके क्या बोलते हैं उसको, फेमिनिस्ट बनने की पूरे प्रयास में लगी रहती हैं। लेकिन बहुत एक मिनट, मैंने कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनने के पेशेंस रखिए। देखिए शैला जी एक जेएनयू जैसे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आती हैं, कन्हैया जी भी यहां पर बैठे हैं, लेकिन शैला जी महिलाओं की बात तो करती हैं, लेकिन कन्हैया जी से मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। लेकिन जब कन्हैया जी को आप विश्वास करेंगे, कन्हैया जी हमारे साथी यहां बैठे हैं, उनको खुले में शौच करना बहुत पसंद है, इनको आजादी चाहिए खुले में शौच करने की। और जब एक स्टूडेंट जेएनयू की इनसे बोलती है कि आप खुले में शौच क्यों कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है जेएनयू को साफ रखना, तो स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं और 3000 रुपए का फाइन ये भरते हैं। एक मिनट शैला जी, बात अच्छा, नहीं हुई। अपनी बात एक मिनट राहुल जी, एक मिनट जवाब दे दीजिए ना उनको। नहीं राहुल जी एक मिनट। ये शैला जी बहुत महिलाओं की बात करती हैं। इन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनमोल रतन अभी जेल के अंदर बैठे हैं, लड़की के साथ, इन्हीं के एक स्टूडेंट के साथ बलात्कार करने के जुल्म में। शैला जी एक मिनट रुक जाइए, शैला जी एक मिनट रुकिए। इन्हीं के जेएसयू के प्रेसिडेंट और शैला जी जानते होंगे बहुत अच्छे से, अकबर चौधरी जी महिलाओं के साथ इस तरीके के बलात्कार की बात करते हैं। अच्छा रोहित, शैला जी आपको अधिकार नहीं है न्यायिक रूप से। रोहित, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों ये ट्रिपल तलाक पे क्यों बात करती, क्यों ट्रिपल तलाक पे ये बात रोहित, क्यों हलाला पे बात नहीं करते? रोहित आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। आपने बात बोली, शांत रहिए, अब ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। आपने बात बोली, आपने तमाम आरोप लगाए, कन्हैया उनका जवाब देंगे। मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या नाम है, सुब्रष्टा जी ने महिलाओं की बात की है, सुन लीजिए जरा, महिलाओं की बात की है। जसोदा बिन पे कुछ बोलिएगा मैम। एक मिनट, एक और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात बोलने दीजिए एक सेकंड। मेरी बात सुन लीजिए मैम, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा उस पर भी बोलिएगा। हम अपना जो आप आरोप लगाए हैं, इस बार हम भी टीडीएस कटवाए हैं, आएगा रिटर्न, कहिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे। ये जो व्यक्तिगत लांछन आप लगाते हैं, ये आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके पास विचारधारा के स्तर पे कुछ जवाब देने के लिए नहीं है। हमने कहा सुनिए, हमने कहा कि मैं सबसे पहले मनुष्य हूँ, सबसे कहा। सुब्रष्टा जी ने कहा कि मैं सिर्फ हिंदू हूँ, तो आप फिर आइडेंटिटी ले आए हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आप करते हैं। जब प्रधानमंत्री रो रो करके कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं पिछड़ा हूं, तो ये आइडेंटिटी है कि नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, देश को गुमराह मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, आप पूरा बोलिए, अपनी पूरी बात आपने रखिए। प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आपने महिला के साथ बदतमीजी की नहीं, जवाब दीजिए। सारे प्रश्न का जवाब देता और उसके ऊपर छेड़खानी ऐसे नहीं छोड़ा। सारे आप प्रश्न लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ कैंपेन करते हो। ट्रिपल तलाक पे क्यों नहीं बोलती, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट की बात क्यों नहीं करती मुस्लिम महिलाओं की? अरे रोहित जी, आप मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए ना पार्लियामेंट में, टिकट तो देते नहीं है मुस्लिम महिलाओं को। देखिए, आपके अपने पॉलिट ब्यूरो के अंदर पहले रिजर्वेशन दे दीजिए। आपने पॉलिट ब्यूरो के अंदर कितनी महिलाएं, पहले उसके ऊपर बात करिए। मुसलमान महिलाएं बहुत अप्रेस्ड हैं। आप पहले कन्हैया जी, अकबर चौधरी, अनमोल रतन प्रोटेस्ट करिए। आप अपने महिलाओं के लिए नहीं मांगती, आप मुसलमान महिलाओं आप पूरे 15% रिजर्वेशन दे दो पार्लियामेंट में यार। कम्युनिस्टों से आपका वोट आप मुसलमान महिलाओं को 15% रिजर्वेशन आप पार्लियामेंट। अरे आप महिलाओं मुसलमानों की अच्छा, बात एक करती हैं, जब एक लेफ्टिनेंट उमर मारे जाते हैं तो उसको लेकर आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एक सेकंड,
जो पीछे माइक कंसोल पे हैं, जिसकी माइक मैं बोलूंगा उसी का फेडर अप करना, बाकियों का फेडर डाउन। इसको करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आपको मैंने आप सभी को एक सेकंड आप सभी को मैंने समझा दिया कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की एक गरिमा है, इस मंच की एक जगह, और यहाँ पे आए लोगों का एक स्टैंडर्ड। यहाँ पे तू तड़ाका और सड़क की राजनीति हमें मंजूर नहीं, और इस तरह की भाषा भी हमें मंजूर नहीं। अब से जो कंसोल पे बैठा है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए माइक का फेडर अप करेगा, जिसके लिए मैं कहूंगा इस तरह की हल्की राजनीति हमें पसंद नहीं है। आपको करना है तो इंडिया में कई सारे नॉर्थ कोरियन चैनल्स हैं, वहां पे जाके कीजिए, यहाँ पे आप मत कीजिए। चलिए, अब आपने कई साले आपने बातें कही। एक सेकंड आपने सवाल पूछे इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस। एक सेकंड, अब आप शुभ राष्ट्र को उसका जवाब देने दीजिए। जब प्रधानमंत्री ये एहसास दिलाते हैं कि वो पिछड़ी जात से आते हैं या पिछड़े होने की बात करते हैं, तो क्या वो खुद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करते? कन्हैया जी ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं पहला सवाल जो पूछा तो उसका जवाब देने दीजिए। जसोदा बेन की बात मैं क्यों नहीं करती? हमर गांव में बिल्दर टोली में एगो जसोदा माई रहत, उनका ही शौच न हल, खुले में शौच जा हलन, और उनकर एगो जब बेटी जो हलन ना, उनका साथ बलात्कार होल हल। स्टैंडर्ड होगा शैला जी, हम थोड़ा बात करने दीजिए मघी में, अपने ही गांव जेवार के हैं। तो चेहरा बना रही है ना, वो सोफिस्टिकेटेड ट्रोलिंग उसको कहते हैं। हम लोगों को तो ट्रोल कह के निकल जाते हैं, आप लोगों का ट्वीट्स भी बहुत होता है। ऑफ कोर्स आई विल रिस्पॉन्ड टू हिम, लेट मी अलाउ मी टू। अब हार्दिक बोलेगा मैं गुजराती में जवाब दूंगा, तो ऐसे में तो हम लोग फंस जाएंगे। शहला राशिद जी ने बात कही कि संघ वंग का कुछ तो भावातिरेक में कह गई। संघ में तो महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी। आज एक्सेप्ट कर रही हैं क्या कि राष्ट्र सेविका समिति नाम की भी एक संस्था है जो एग्जिस्ट करती है? धन्यवाद आपका जो आपने थोड़ी सी रिसर्च की। बाकी बात रही अगड़े पिछड़े की राजनीति की, कन्हैया जी, तो ये राजनीति तो होगी ना कन्हैया जी। आप भी जिस परिवेश से आते हैं, कुछ पूछ रहे हैं कन्हैया जी, आप भी जिस परिवेश से आते हैं, आप एक अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या आप पिछड़े नहीं हैं? बिल्कुल आप पिछड़े हैं। मैं भी एक समय पे पिछड़ी थी, पर आपको पिछड़े कब तक रहना है ये निर्णय तो युवाओं को ही करना होगा ना। ये निर्णय शहला राशिद जैसे कंप्यूटर इंजीनियर जो लीच की तरह बैठे हैं मेरे टैक्स पेयर के पैसे पे पिछले 6-7 साल से, वो डिसाइड नहीं करेंगे कन्हैया जी। और मैं आपको बता दूं, आपकी हो सकता है साठगांठ हो, नहीं हो मैं नहीं कह सकती, मैंने उतना रिसर्च नहीं किया है, पर आपके मूवमेंट के अंदर भी जो एक अंतर विरोध है उसको आपको एड्रेस करना होगा। हार्दिक पटेल जी, मैंने आपके बारे में कई बार सुना है कि आपने कहा है कि मुझे क्यों कम्युनिस्टों के साथ डाल देते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप लोगों के अंदर का जो पूरा मूवमेंट है, एंटी बीजेपी और एंटी मोदी मूवमेंट है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर विरोध है हार्दिक पटेल जी। जो जिस अंतर विरोध का एक प्रश्न है जो दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ, इनको तो मैं इरेलेवेंट मानती हूँ, इसलिए पूछना चाहती हूँ कन्हैया। किसको रोहित को आप इरेलेवेंट मानती हैं? क्यों? किसको रोहित को इरेलेवेंट मानती? किसको कहा आपने इरेलेवेंट? मैंने शैला जी को कहा कि मैं इरेलेवेंट मानती हूँ। ये मुस्लिम महिलाओं का नेतृत्व करने वाली ये नहीं है, ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी। आप बार-बार उनको मुस्लिम होने का एहसास क्यों दिलाती हैं? उन्होंने तो कहीं अपने आप को परिभाषित नहीं किया एक मुस्लिम महिला के तौर पे। तीसरी दफा आप उनको मुस्लिम महिला कह रहे हैं। मैंने कहा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मुस्लिम महिलाओं ने नकार दिया, ये कहा। आप क्यों मानते हैं कि ये मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? मैंने तो बोला ही नहीं, आप ही ने कहा कि वो मुस्लिम महिला। राहुल जी, मैं ना आपकी तरफ से बैटिंग करूंगा ना उनकी तरफ से। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात कही। कन्हैया सवाल एक से हार्दिक, अरे भाई गुजरात के बहुत बड़े गुजरात के बड़े नेता हैं, इनको बोलने का मौका तो मिले। बड़े लोग आते हैं इनको सुनने के लिए, गुजरात में बहुत किलोमीटर चल के आते हैं इनको सुनने के लिए, इनको भी तो बोलने दीजिए। आप यहाँ फंस गए जेएनयू की आपस की लड़ाई में। एक सेकंड हार्दिक पटेल, सवाल ये है जो पूछा गया वो ये कि आपकी जो पॉलिटिक्स है वो हेट से, एंटी बीजेपीइज्म से, एंटी मोदीइज्म से ड्रिवन है, कि मतलब बेसिक पॉलिटिक्स का मूल है कि किसी तरीके से बीजेपी की मुखालफत हो। देखो वो तो खुल के करता हूँ, उसमें जरा सा छुपाता नहीं हूँ, दम लगाकर मोदी का विरोध करता हूँ, दादागिरी से करता हूँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम कम से कम 20 मिनट चले गए, पता भी नहीं चला क्या लड़ रहे थे सब कुछ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा था कि जो टॉपिक दिया गया था उस टॉपिक पर बात होनी चाहिए थी। यहाँ पर बात हो गई, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पिछड़ा है, ये पटेल है, सारी बातचीत हो गई। लेकिन क्या हम लोगों ने अपने आप को कभी पूछा है कि क्या कोई हिंदू खतरे में या कोई मुसलमान खतरे में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से जिस तरह से देखता हूँ, जिस तरह से समझता हूँ, लोगों ने
बता दिया कि हार्दिक मतलब मोदी का विरोधी, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी। लेकिन क्यों है हम लोग? जिस तरह से गुजरात के अंदर निर्दोष लोगों को मारा गया, गलत सेडिशन के केस लगे गए, आज हर वीक में 2 तारीख लगानी पड़ती है, कोर्ट की तारीखें लगानी पड़ती है। हमें ऐसा था कि हमने भी वोट दिया था नरेंद्र मोदी को जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, और हमने क्यों दिया था कि हमें एक आस थी कि ये जाएंगे सत्ता में और जाकर युवाओं को रोजगार देंगे, किसान नाराज नहीं होगा। और देश के अंदर जो बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की तो बातें होती रहती थी गुजरात में, राष्ट्रवाद। आपने ये कहा कि हम हिंदू हैं, हमें राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए। आपको मालूम नहीं होगा, गुजरात के अंदर जब नरेंद्र भाई पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बड़े बड़े शब्दों में उन्होंने एक ही शब्द, मैं हिंदू हूं, और मैं जाहिर में नहीं बोलना चाहता लेकिन बोला था मियां मुशर्रफ। ये सारी चीजें बोली जाती थी। दूसरी बात, और मेरे माइक में तो बीच में बोलने का ही नहीं, पहले मेरे को संभलने का। दूसरी बात कि जब वो यहां पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने कर आए तो कि मैं पिछड़ा हूं, मैं ओबीसी हूं, और अब जो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर जीत गए और आज पीएम कहलाते पूरे देश में घूम रहे, तो क्या कहते हैं कि हमें हिंदू और मुसलमान को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बड़ी पॉलिटिकली गेम खेल रहे। कैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के अंदर बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर थे, तब हिंदुत्व की बात कौन करता था? अडवाणी जी। पूरे देश में रथ यात्रा निकल गए, और तब अटल जी सद्भावना की बात करते थे। अटल जी चले गए, अडवाणी उनकी जगह पर आए। अडवाणी ने सद्भावना और समानता की, हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलने की बात की। तब गुजरात के अंदर मोदी जी ने हिंदुत्व का बड़ा झंडा पकड़ा। आज मोदी जी सत्ता पर है, मोदी जी सद्भावना की बात करते, हिंदू और मुसलमान को साथ लेने की। तो यूपी के अंदर योगी जी नहीं मैं तो हिंदू हूं, मैं ईद बीद नहीं मनाता। अच्छी बात है। एक मुसलमान ने कल एक बड़ी अच्छी ट्वीट की थी कि मैं मुसलमान हूं, मैं होली मनाता हूं और मैं बड़े प्यार से उसको सम्मान करता हूं। आप कहो ना कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं, मैं ईद मनाते हैं उनको मैं पूरा सहयोग देता हूं। ये बात होगी तब हमारे देश की अच्छी पॉलिटिक्स होगी। रोहित, ये कहना कि मैं ईद नहीं मनाता, ये ठीक क्या? हार्दिक पटेल डबल गेम का आरोप लगा रहे हैं कि जब विपक्ष में होते हैं तो अलग किस्म की आइडेंटिटी और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, सरकार में आने के बाद, स्थापित होने के बाद अपना रंग बदलने की कोशिश करते हैं। जवाब दीजिए। सबसे तो मैं पहले हार्दिक पटेल जी को, आवाज ठीक है ना? माइक ठीक कर दिया ना? सबसे पहले तो मैं हार्दिक पटेल जी को बधाई देना चाहूंगा। इनकी बहन की शादी अभी 2 दिन पहले थी। हार्दिक जी बधाई हो। यहां पर बात करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, तो हार्दिक जी की तो आइडेंटिटी क्या है, वो सिर्फ अपनी और जाति, उसके बाद देश की बात नहीं करते। मैं भी पिछड़ी जाति से आता हूं, और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने इसलिए बोला है कि मैं आज सिर्फ अपनी जाति की बात नहीं करता, मैं देश की बात करता हूं, मैं सभी जातियों की बात करता हूं। एक बात, हार्दिक जी सबसे पहले तो बधाई हो। 3 साल पहले जब आंदोलन शुरू हुआ, जब आप कहते थे कि मेरी बहन जो थी उसके पास चेक आया और वो चेक बाउंस हो गया, जो भी कहा आपने, जो 12th पास करने के बाद, आज आपकी बहन की शादी होती है, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आप उस शादी में लगाते हैं। ये कहां से पैसा आया? एक बात, आपने जो पटेलों के आंदोलन की बात कही, देखिए गुजरात के युवाओं ने, पटेलों ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया है। आप जीरो हो चुके हैं। आपकी आइडेंटिटी क्या है वो आप जाने। जो पटेलों का केंद्र था, आंदोलन का गढ़ था सूरत। मेरी बात राहुल जी, उनको जवाब समय तो पूरा दीजिए, इतना दिया दीजिए तो 2 लोग हैं। राहुल जी सुनिए, आप माइक बंद करा रहे हैं, आवाज तो कब तक? मैं माइक सबकी बात करा रहा हूं। इंटॉलरेंस मत, रुकिए बात रखने दीजिए ना। देखिए हार्दिक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी के साथ आप गुपचुप मीटिंगें जो करते थे, आपने पूरे आंदोलन को बेच दिया। पटेल के युवाओं का जो आपसे उम्मीद थी, वो उम्मीद पे तो आप खरे उतरे नहीं। लेकिन अब आप अपनी आइडेंटिटी के लिए कांग्रेस में, आप बोलिए ना, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले हैं। अच्छा ठीक है, आपने बहुत कुछ बोल दिया, जवाब तो दीजिए। एक, क्या आपकी बहन की शादी पे 10 करोड़ रुपए खर्च हुए? अरे आप शादी देखिए ना, फोटो कहां से आया? अरे हार्दिक जी, वो पैसा कहां से आया? वो जो वीडियो आया था पैसा लेने वाला, वहीं से पैसा आ रहा है। रोहित, आपने इतना लंबा अभी बोला, उनको बोलने दीजिए। तो इनकम टैक्स आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है। अरे भैया एक बात बताइए, वो पैसा तो आपके पास आ रहा है। सुनिए, इनकम टैक्स है, वो पैसा कहां से आ रहा है? राहुल जी दे रहे हैं, आपको कौन दे रहा है वो बताइए ना। एक बात बताओ, आपके पास एक समय तो उसका पैसा, अच्छा रोहित के पास, उनको जवाब तो देने दीजिए। रोहित, ऐसे नहीं होगा ना, आपने सवाल पूछे, जवाब। मैंने यही कहा कि आपके पास सब कुछ है, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और दूसरी बात, जवाब सुनो, तो जवाब सुनो ने, भारतीय जनता पार्टी वाले लड़ते बहुत है आपस में। आपको पहले जवाब सुनो। आपके युवाओं ने, रोहित उनको जवाब दे दीजिए। अच्छा, अगर हमारा आंदोलन इतना बड़ा था
हमने हमारा आंदोलन कांग्रेस को बेच दिया। कांग्रेस देती तो कितने देती, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्फत के कैलाशनाथन, जो गुजरात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो जेल में आकर 1200 करोड़ रुपए देने की बात करते थे, तो उसी टाइम मुझे बेच देना चाहिए था ना आंदोलन। ना कि आप पहली बात थे कि मैं गरीब हूं और इसलिए जो गरीब अच्छा, आता है वो व्यक्ति आंदोलन करता है। मैं पढ़ा चलिए ये माइक डाउन कर दीजिए, ऐसे नहीं होगा, आपकी माइक डाउन है। मैं ये नहीं, आपको ये थोड़ी पूछा कि माइक उठा के बार बार पूछ रहे। आपने 4 सवाल पूछे, उनके जवाब दे दीजिए। आप बीच में बोलते हैं तो आप बोलते हैं उनको बोलने नहीं दे रहे। आपने 4 सवाल पूछे, उनको जवाब दे दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप राहुल गांधी से छुप छुप के क्यों मिलते थे? देखो, पहली बात कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी को नहीं मिला। अगर मैं ममता बनर्जी को खुलेआम मिलता हो, मैं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को खुलेआम मिलता हो, मैं नीतीश कुमार को मिलता हो, तो मुझे राहुल गांधी को मिलने में दिक्कत क्या हो सकती है? नहीं आपको मिला। लगा कि पाटीदार आपसे रूठ जाएगा अगर आप राहुल गांधी से मिले? अगर मिला होता, मेरी एक गलती हो गई, अगर मिला होता तो आज वो 99 पर नहीं होते, वो 79 पर होते। बीजेपी, ठीक है, बीजेपी। कन्हैया कुछ बोलना चाहते हैं? आवाज तो दिलवा दीजिए। नहीं आएगी आवाज। हेलो हेलो, अच्छा सुनिए, एक बात मैं बिल्कुल 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक तो आपने बहुत सही किया, ये माइक बंद करने का काम किया। ये अगर आप टीवी स्टूडियो में करा दिए होते तो आज पात्रा जैसे लोग ओएनजीसी का डायरेक्टर नहीं बनते। दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 3 आरोप लगाया गया। पहला कि आप जो है 30 बरस तक पढ़ क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री जी 35 बरस में एमए किए हैं, हम 30 बरस में पीएचडी किए हैं, क्या गलत किए हैं मोदी जी, आप ही बताइए। तीसरी बात, ये जो है व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है खुले में शौच करते हैं, तो आपकी पार्टी के लोगों ने बलात्कार किया, तो आप जो है कांग्रेस से मिल गए, आप कांग्रेस से पैसा खा गए। आप समझिएगा इस पे, बहन की शादी में 10 करोड़। सुनिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। ये जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं उस पर सुन लीजिए। पहली बात, मेरे ऊपर अगर कुछ भी गलत हुआ होता ना रोहित जी, सुनिए ना, कुछ, अरे झूठ मत बोलिए, कुछ भी अगर हम गलत किए होते ना रोहित जी अगर हम कुछ भी गलत किए होते ना, तो आपके मोदी चचा का इतना कुर्ता खींचे हैं ना कि आप फिर से हमको जेल में डाल दिए होते हैं। सुनिए, और आप बार बार जो है ना ये जो व्यक्तिगत आरोप आप लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि आप आवाज को दबा दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जवाब देंगे कन्हैया, आपने अब बोला, अब स्पेसिफिक बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि सच को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्ता का दंभ है ये सत्ता का दंभ है कि आप कागज दिखा रहे हैं कि आप एक राज्य में बते हैं। साहब, हम सड़कों पे हैं, एसएससी स्कैम में संघर्ष कर रहे हैं। माइक तो सबकी बराबर से बंद होगी ना, ये थोड़ी कि एक ही साइड की बंद होगी। आप नहीं, वो माइक डाउन ही रहेगी। अरे वो उनको जवाब देंगे। नहीं, अरे आप नहीं, ये बड़े होके टीवी पे अच्छे नेता बनेंगे, इनको आप बहुत देखेंगे टीवी पे। अभी शुभ राष्ट्र जवाब देंगे। अरे मैं तय करूंगा ना, मॉनिटर मैं हूं, आप अपना अरे आप एक BYJM का अपना बुला लीजिए, आप उस पे कीजिए जो आपको करना है। यहाँ पे आप हमारे मंच पे अब शुभ राष्ट्र उन तमाम सवालों का जवाब देंगी जो कन्हैया ने बोले कि विचारधारा का जवाब नहीं है, सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए इनको दबाने की कोशिश, उसका जवाब देंगी शुभ राष्ट्र। देखिए, मैंने इस पहले, ठीक है, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाके सदाचारी कैसे हो जाते? मैंने अपने पहले शायद इसके ठीक पहले जो मैंने जवाब जो मैं दे रही थी उसमें मैंने एक बात कही थी कि ये एंटी मोदी और एंटी बीजेपी गैंग है। ठीक है, इसमें हम लोग को भ्रमित नहीं होना है कि ये एक पर्टिकुलर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दलितों वंचितों की बात उस टाइप की नहीं हो रही है। ये जो दिखा रहे हैं ना, ये फैक्ट है, पर उस फैक्ट पे वो बात नहीं करना चाहते। दूसरा फैक्ट वो बोल रहे हैं, मैं उस फैक्ट पे बात करती हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में काम करती हूँ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं। अव्वल नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं जो कांग्रेस छोड़ करके आए। बात ये है ना कन्हैया जी कि जब आइडेंटिटी की बात आती है ना, और कोई डायनेस्ट अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और ज़मीन से जुड़ा हुआ वो युवा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उस प्रिविलेज्ड को एक प्रोलेटेरिएट चैलेंज करना चाहता है, उस लड़ाई के लिए, जैसा रजत ने शायद राजदीप जी को कहा था, 100 लड़ाइयाँ कुर्बान है उसके लिए। वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। हिंदू वाली बात आपने भी उठाई, उन्होंने भी उठाई, जवाब देने का मौका नहीं मिला था मुझे। देखिए, जिस विचारधारा को मैं बिलोंग करती हूँ हार्दिक जी, उसमें हिंदू केवल धर्म तक सीमित नहीं है। उसमें आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप ये बात कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं पे भी मेरी, जहाँ पर भी मेरी राजनीतिक दाल गलेगी, गलत तरीके से मैं नहीं बोल रही हूँ, सही तरीके से कह रही हूँ, जहाँ भी आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, जहाँ पे भी आपकी आवाज़ को सम्मान मिलेगा, वहाँ जा सकते हैं। तो शहजाद पूनावाला कांग्रेस में ही हैं, मुसलमान हैं,
अपने आप को कल्चरल हिंदू कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप ही के उद्बोधन में उसका सार छुपा हुआ था। एक मुसलमान जब होली मनाता है तो वो कल्चरल हिंदू, वो सांस्कृतिक रूप से हिंदू। धर्म आपका कोई भी हो, धर्म आप मुसलमान हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं। अगड़े पिछड़ों की राजनीति की बात की गई। कल कन्हैया जी, जब सांत्वना चकमा जी जब रुंधे गले से अपना शपथ ग्रहण समारोह में वो जब ले रही थी ना, शपथ ले रही थी, कम्युनिस्टों ने जकड़ करके उस आवाज को रखा था, चकमाओं की आवाज। शुभराष्ट्र ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, ये मैं सवाल शहला से पूछने जाता हूँ। नहीं, एक सेकंड, मैं उसका संदर्भ मुझे बताने दीजिए, क्योंकि चकमा जी की आवाज यहाँ तक शायद नहीं पहुंच पाएगी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, पर मैं हूं तो मैं उस बात को मैं रखना जरूर चाहूंगी। जब एक दलित ट्राइबल महिला 10 चीफ मिनिस्टर, 10 यूनियन मिनिस्टर्स, भारत के प्रधानमंत्री, गवर्नर और नए कैबिनेट के लिए शपथ ग्रहण करती है ना, वो है द प्रोलेटेरियट्स हैव इंडीड रिजन अगेंस्ट द कम्युनिस्ट्स। चलिए शहला, रोहित ने एक मैप दिखाया, उन्होंने बोला ये है हिंदुस्तान की वर्तमान राजनीतिक आइडेंटिटी। रोहित एक बार फिर से मैप दिखा दीजिए। एक तरफ बीजेपी थे 20-21 स्टेट्स में, एक तरफ वो सोच, वो विचारधारा जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, एक स्टेट में आके टिक गया। तो क्या ये बात अब साफ है कि जिस सोच को आप रिप्रेजेंट करती हैं उसकी लोकप्रियता यहाँ पर टीवी पे वोटरों के बीच में घटती जा रही है, और वो सोच जिसको रोहित रिप्रेजेंट करते हैं उसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से इस देश में इस वक्त बढ़ रही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बधाई देना भूल गई, आपको बधाई देती हूँ। आप लोगों ने त्रिपुरा का इलेक्शन जीता, बहुत सारे इलेक्शन जीते। ये सही बात है कि पूरे देश में जो है भाजपा का रूल है, सब जगह चल रहा है। आपने पूछा कि जिस राजनीति को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं पहले तो किसी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ। अभी इस वक्त मुंबई की तरफ 25,000 किसान लाल झंडा उठाकर यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अधिकार मांग रहे हैं भाजपा की सरकार से। चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सरकार में हो, इट डजंट मैटर, उन लोगों की आवाज़ मैटर करती है। मैं ये मानती हूँ कि लेफ्ट की राजनीति को आज दे नीड टू पुट देयर ear to the ground, the communist parties need to put their ear to the ground and listen to what the people are saying. But मेरे 5 छोटे-छोटे सवाल हैं रोहित जी से। 5 छोटे-छोटे सवाल? छोटे-छोटे। I promise just 5 seconds. I promise 5 seconds. पहला सवाल, पहले आप सुन लीजिएगा सवाल। आपको क्यों लगता है कि DU में जब आप कैंपेन करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ, तो आप लोग कहते हैं कि हम लड़कियों के बीच में कैंपेन करना चाहते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहें? पहली बात, आप क्यों नहीं मानते हैं कि लड़कियां जो है अपने लिए डिसाइड करने के काबिल हैं, अपने लिए डिसाइड करने के योग्य हैं? दूसरा सवाल, आपने पूछा कि हार्दिक पटेल जो है वो राहुल गांधी से क्यों मिले। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। नीरव मोदी दावोस में प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे? पहला सवाल। आपका तीसरा सवाल है कि स्वामी असीमानंद अपने कन्फेशन में कहते हैं कि सुनील जोशी, जिनको बम धमाकों के लिए कन्विक्ट किया गया था, वो योगी आदित्यनाथ से जाकर गोरखपुर में मिले थे। योगी आदित्यनाथ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने संविधान पर शपथ ली थी, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ये आपका तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, हो गया क्या? इस सवाल का मुझे आपकी माइक लेनी पड़ेगी। चलिए 3 सवाल, 3 का जवाब दे दीजिए, बहुत है। माइक चालू है क्या? आप 3 का दे दीजिए। राहुल जी एक बार परमिशन दे दीजिए ना माइक चालू करने की। भाई देखिए, सबसे पहले तो कन्हैया जी ने भी विषय रखा अभी थोड़ी देर पहले कि भैया एसएससी का आंदोलन। ये जो मेरे साथ शाला जी बैठी हैं और इनके सहयोगी मोहित पांडे जी, जब एसएससी के आंदोलन को गिद्ध की तरह नोचने के लिए जाते हैं तो वहां के विद्यार्थी इनके साथ क्या करते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। इनको धक्के मार के वहां से विद्यार्थी भगाता है, ये इनकी असलियत है। और ये नहीं, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय, शैला जी सुनिए, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय का नाम ये लोग खराब करते हैं और स्टूडेंट्स को जेएनयू गो बैक और देशद्रोहियों वापस जाओ, ये वहां के हजारों विद्यार्थी कहते हैं। अब आते हैं शैला जी के जो आपके प्रश्न थे। शैला जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आपने बात तो करी, 1 मिनट आप आपस में ही प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न पूछे, उनका जवाब आपने तो बात दे करी। आपका बुरहान वानी पे क्या कहना है? आप बताइए, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था? 1 मिनट, प्रश्न का 1 मिनट रुक जाइए। बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था? 1 आप रिलेशनशिप पे बताओ ना। आप लेफ्टिनेंट लड़कियों को क्यों बोलते हो? लेफ्टिनेंट उमर पे आपको पता नहीं है, हम आपको बचाना चाहते हैं।
आप रिलेवेंट आप बताइए ना बुरहान वानी आतंकवादी था नहीं था? अच्छा, आप बताइए अफजल गुरु योगी आतंकवादी था नहीं आदित्यनाथ था? योगी अफजल आदित्यनाथ गुरु मेंबर ऑफ आतंकवादी था पार्लियामेंट नहीं था? आप ये सुनील बताइए। जोशी के बारे में अरे आप बताइए ना बुरहान वानी योगी आतंकवादी था नहीं आदित्यनाथ को था? टेरर अटैक आपको का बताना पता था। पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को अजमेर ब्लास्ट का पता था। आपको बताना पड़ेगा बुरहान वानी आतंकवादी। उन्होंने इन्फॉर्म अच्छा, किया अच्छा, पुलिस शैला, को। शैला, शैला। योगी आदित्यनाथ सुनील जोशी से मिले या नहीं मिले? अरे असल में मसला, अच्छा एक सेकंड, मसला तो यह है कि सभी एंकर बन जाएंगे तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। ऐसे मत कीजिए, मेरी भी रोजगार योजना के बारे में सोचिए अभी। अच्छा शैला, अगर रोहित आप शैला से सवाल पूछेंगे, शैला आप अगर रोहित सवाल पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरी भी सोचिए, मेरी भी कोई रोजगार योजना होनी चाहिए ना, एक एक करके। मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं माइक आप दोनों को लौटाऊंगा, पर इस शर्त पे कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब देखिए। जब आपको माइक वापस चाहिए होती है तब आप सब मान लेते हैं, जैसे आपको माइक मिलती है तब आप सब भूल जाते हैं। तो आप वापस लीजिए अपनी माइक, लेकिन थोड़ा सा सब्र करते हुए ये लीजिए। देखिए असल में उनके संगठन में मुझे मालूम है, फील कर रही है सच रोहित, मुझे मालूम है कि सबके संगठन में सब लोग देख रहे हैं और लगातार उनको फीडबैक व्हाट्सएप ट्विटर आ रहे हैं कि ये बोलो वो बोलो, तो सब लगे कि पूरे नंबर बना ले, जितना बोल सकते हैं सब बोल दें। लेकिन एक एक करके उससे मंच की गरिमा खराब हो जाती है। कन्हैया सवाल अच्छा पूछा रोहित ने, वो ये कि लेफ्ट की जो विचारधारा है वो लुप्त होती जा रही है। एक राज्य बच गया है, अगर वहां पे भी कहीं हार गए, वहां पे बीजेपी बढ़ रही है, संघ बढ़ रहा है, तो लेफ्ट को हिंदुस्तान में खोजना मुश्किल हो जाएगा। अरे आवाज आ रही है? सर जानते हैं ये गलत सवाल गलत व्यक्ति से पूछा जाता है। जब मोदी जी मानिक सरकार से हाथ मिला रहे थे ना, तो उसी वक्त कान में पूछ लेते कि केरला कब हारिएगा। ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनको मंच पे बिठाए हैं, पैर जोड़े हैं, वहीं जो वो शपथ ग्रहण में बुलाए हैं। सवाल कन्हैया कुमार से पूछ रहे हैं। सहला गई एसएससी स्कैम के आंदोलन में प्रोटेस्ट करने, ठीक बात है। तो सरकार के प्रतिनिधि होने के चलते सरकार को जवाब देना चाहिए कि स्कैम हुआ क्यों, नीरव मोदी भागा क्यों, माल्य गया क्यों, इसका जवाब देना चाहिए ना। सहला शिक्षा मंत्री है कि सहला से इस्तीफा मांग लें, कि सहला प्रधानमंत्री ऐसे इस्तीफा मांग लें। देखिए दिक्कत क्या है कि इस देश में एक बात समझिए, बीजेपी जीत रही है, बहुत खुशी की बात, लेकिन उसके चलते जो इनके अंदर सत्ता का गुरूर पैदा हो रहा है, दंभ पैदा हो रहा है, जिसमें लोकतंत्र को ये पूरी तरह से मरोड़ करके खत्म कर देना चाहते हैं। विपक्ष का काम है सवाल करना, सरकार का काम है जवाब देना, लेकिन ये जवाब देने के बजाय सवाल करते हैं। अरे सवाल मत कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए इन्होंने जो हमसे सवाल किया उसका हम जवाब देते हैं कि हम भी टैक्स भरते हैं, समय पे हम भी पीएचडी जमा करेंगे। और जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा, हो गया। शुभराष्ट्र को मौका दीजिए। नहीं, शुभराष्ट्र किसान का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उस पर कुछ बोलेंगे? एक सेकंड, आपकी कन्हैया की माइक बंद कीजिए, क्योंकि मुझे कई सारे बीजेपी के सांसद फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ बीजेपी वालों की माइक बंद करवा रहे हैं, हमारे लोगों की बंद करें, सबकी माइक बराबर से बंद होगी। नहीं शैला, माइक बराबर सबसे होगी। शुभराष्ट्र को जवाब देना है कि आप मतलब मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, बीजेपी सत्ता में बैठी है, लेकिन सवाल ऑपोजिशन से कि आपने क्यों नहीं किया। वो कह रही कि भाई शैला रशीद थोड़ी शिक्षा मंत्री जो है वो जवाब दे कि एसएससी का आंदोलन क्यों हो रहा है। नहीं उसके नहीं, आप बोल चुके, अब आप बराबर से। कन्हैया जी तनी सुना, अरे कन्हैया जी तनी सुने के तनी रख आराम से बात होए। देखिए 2-3 चीजें हैं जिसको स्पष्ट करना जरूरी है। राहुल कंवल जी बड़े चालाकी से लास्ट का पोर्शन उठा करके सवाल पूछते हैं, पहले का बैकग्राउंड संदर्भ भूल जाते हैं, वैसा ही जैसे मीडिया में कवरेज होता है चीज़ों का। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों की लंबी फहरिस्त चली है इसमें, जिसमें महिलाओं की बात भी हो गई, धीरे से दलित एंगल भी घुसाया गया, तमाम तरीके की बातें की गई। 100 बात की एक बात यही है, अगर ये पूरी राजनीति ये जो 3 युवा टर्क यहाँ बैठे हैं, जो ये तीनों की राजनीति अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट की है, तो फिर ये एस्टैब्लिशमेंट से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सारी चीजों का जवाब मिले? Where is the constructive alternate model that they have brought? And the question will be on them, Rahul, because it's an ideological question. It is not a political question. Just a second, Rohit ji. The attempt in this conclave also, especially in this session, has been to somehow politicize the debate. I don't think I don't represent a political party. Yes, I represent an ideological position. And I thought that I was against 3 people who were representing independent ideologies with their biases. हिंदी में जवाब देना जी, हिंदी में जवाब। हाँ हार्दिक जी, मैं ये कह रही थी, अपॉलॉजीज नहीं अपॉलॉजीज नहीं, पटेल तो पिछड़े नहीं थे, पर आप लोग जैसे पिछड़े बना दिया। बट एनीवे मैं हिंदी में ही जवाब देती हूँ।
मैं ये कह रही हूं कि जब मैं यहां आई थी तो मैं ये सोच करके आई थी कि आप जो 3 युवा रिप्रेजेंटेटिव्स अपने आप को कहते हैं, मैं युवा रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे इसलिए कह रही हूँ, बताती हूँ काहे कह रहे हैं, बताते हैं काहे कह रहे हैं, काहे कि 48 वर्ष का युवा भी युवा ही है अभी, तो अगले 20 साल तक तो आप और हम युवा रह ही सकते हैं। आपने कहा कि कन्हैया भाषण दे रहे हैं, अब आप भाषण दे रही हैं, तो हो गया, आपने अपनी बात कही। एक सेकेंड, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव देना है तो आपको कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव देना है। आपका ऑल्टरनेटिव ये हो सकता कि मोदी खराब है, बीजेपी खराब है, संघ खराब है। अरे आप क्या करेंगे ये तो बताइए। हम तो सत्ता में है ही नहीं, पर आपको अगर आना है सत्ता आने नहीं देंगे इसी वजह से। अच्छा शुभराष्ट्र की आप माइक डाउन कीजिए, अब आपकी माइक डाउन है, अब आप जवाब। ऐसे कोई किसी के बाप का थोड़ी ना नहीं आने देते, आना है तो तुम दूर दुष्ट जाएंगे। लेकिन कहने की बात है कि सत्ता में भाषा का प्रयोग सत्ता, एक मिनट, आप कैसे ऐसे शब्दों अच्छा एक सेकंड, उनको जवाब देने दीजिए, चालू कीजिए राहुल जी, उनको जवाब देने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके, सबको एक आखिरी मौका। हमारे लिए सब गरिमा है, आपके लिए सब मौज मजा है। हम करे वो सब चोरी और आप करे सब लीला। अरे माइक, कहने का मतलब सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, आज बहुत से राज्यों में उनकी गवर्नमेंट है, तो स्वाभाविक है आज मैं एक जनता का एक व्यक्ति हूँ, मैं भी एक जनता में रहा हूँ, एक व्यक्ति हूँ, तो हमारी भी जिम्मेवारी होती है और हमारी भी अपेक्षाएं होती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। अगर वो नहीं करती तो हमारी भी जिम्मेवारी यही भी बनती है कि हम उनके सामने लड़े, उनके सामने आंदोलन करें, उनके सामने हम लड़े। और बाकी तो गवर्नमेंट जो करना चाहती करे, मुझे तो भरोसा नहीं है कि वो हमारा काम करे। इतना भरोसा 100% है, वो हमें जेल में जरूर डाल सकती है। चलिए चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं सबको मौका दूंगा बोलने का और बराबर से मौका दूंगा। रोहित सबसे पहले अपनी बात रखें, लेकिन ये आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे, तो इस मंच के सामने जो आप कंक्लूजन में बोलना चाहते हैं बोल दीजिए फटाफट। देखिए मैं यही कहूंगा कि आज आइडेंटिटी की बात करते हैं, इनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से देश से समाप्त हो चुकी है। जहां जहां चुनाव होता है, गुजरात में चुनाव होता है तो ये लोग चाहते हैं कांग्रेस जीत जाए, दिल्ली में चुनाव होता है लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी जीत जाए, और बिहार में चुनाव होता है तो ये चाहते हैं आरजेडी जीत जाए। ये कन्हैया जी ऐसा क्या गले लगे लालू जी से, या क्या ऐसे पैर छुए आज लालू जी को जेल जाना पड़ रहा है? कन्हैया जी देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां लड़ाई जो है वो आइडेंटिटी की नहीं है। आइडेंटिटी तो पूरे देश से खत्म हो चुकी है, और जो पूरे विश्व ने इनकी आइडेंटिटी को, इनके विचारों को नकार दिया है, आज सिर्फ और सिर्फ वो केरला के अंदर अपनी अंतिम सांसें इनकी आइडेंटिटी ले रही है। कन्हैया आखिरी में आप अपनी बात रखें। सबसे पहले दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सेशन को सुने, और मैं माफ़ी चाहता हूं कि हम युवा हैं लेकिन हमारा पैटर्न जो है वो पुराने घिसे पिटे पार्टी के प्रवक्ताओं का है कि हम भी बोलते कम हैं, चिल्लाते जाता हैं। भारत को चिखता भारत नहीं बनाता है, बनाना है, बदलता भारत बनाना है। बदलते भारत के लिए जो अल्टरनेटिव है उसमें सीधी सी बात है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसको लिखा है, उसकी प्रस्तावना में ही इस देश में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए उसको साफ साफ लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको एक इक्वल सोसाइटी चाहिए, हमको एक जस्ट सोसाइटी चाहिए, जहाँ पे हर कोई एकता के भाव से, समानता के भाव से अपनी जिंदगी को जी सके। ऐसे समाज का निर्माण करना यही हमारा विकल्प है, हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शुभ राष्ट्र। छोटे में आखिर में अपनी बात। जिस भीमराव बाबर, जिस अंबेडकर साहब जी की बात की कन्हैया जी ने, मैं बहुत ससम्मान उनसे कहना चाहती हूँ, नहीं वो हंसिए मत, इसलिए मत हंसिए क्योंकि कई बार भावातिरेक में ऐसा होता है, ठीक है जी, मुझे मालूम है। और आपको अगर कोचिंग ही करवानी हो तो मैं जवाब में दे रही हूं। ये बार बार दक्षिणी वेलायुधन जी को बात खींच कर क्यों नहीं लाते? जब दलित डिस्कोर्स की बात होती है तो उस महिला को क्यों भूल जाते हैं, जिन्होंने संसद में एकमात्र दलित महिला होने के साथ साथ उन्होंने अंबेडकर के विचारों का खंडन किया था। तो ये जो सिलेक्टिव राजनीति है, जिसको स्पॉन्सर करने वाले लोग पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, एकेडमिया में भी हैं, मीडिया में भी हैं, और उन लोगों के सामने बैठकर ये ठिठोलीबाजी करते हैं डिबेट के नाम पर, इन लोगों की राजनीति को नकारना है। और मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि इस तरह का डिबेट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और ये एक्सपोज हुए हैं आज अपने विचारधारात्मक रूप से, जो खाली है ये अपर कंपार्टमेंट उनका, वो एक्सपोज हुआ है। ठीक है, मैं कहूंगी एज एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर कि पढ़िए, रिसर्च कीजिए। शैला आखिर में, छोटे में। देखिए आखिर में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम लोग बहुत आरक्षण ये आरक्षण वो बहुत डिबेट चलता रहता है, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। नहीं, अब सवाल का टाइम नहीं है। ये प्रश्न पूरे देश से है, ये प्रश्न पूरी व्यवस्था से है। भैया बोल लेने दो। ये प्रश्न पूरी व्यवस्था से है कि अगर हम लोग मानते हैं कि बिना आरक्षण दिए
बिना कोई जो है एफर्मेटिव एक्शन लिए, बिना कोई इंस्टीट्यूशनल मेजर दिए अपने आप समाज की जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसका सिर्फ एक उदाहरण ये है कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं लाया। चलिए मैं मान लेती हूँ 2 मिनट के लिए अगर आर्ग्यूमेंट मान लिया जाए कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, तो मैं आज ये व्यवस्था से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया गया तो अपने आप महिलाएं 50% क्यों नहीं हुई पार्लियामेंट में? एक बात साफ है इस पूरी बहस से कि देश की राजनीति में सत्ता में चाहे राइट विंग पार्टियां काबिज हो या लेफ्ट विंग, लेकिन गर्मा गर्मी और जोश पूरा रहेगा। इंडिया टुडे में आए तमाम मेहमान मैं चाहता हूं कि बहुत जोरों से आप शुभराष्ट्र, साथ ही साथ रोहिल, शहला, कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल के लिए तालियां बजाएं। एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस, क्लैश एंड कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियाज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है कि लेफ्ट और राइट गले भी मिल रहे हैं।